सलामुकुम जी, मैं हूं आपके मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया और कहा जी 80 रुपये फ़ी लीटर में पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। 24 घंटे पहले वो 137 रुपये बढ़ाते हैं और 80 रुपये फिर कम कर देते हैं। ये कैसा खेल खेला जा रहा है, आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या 80 रुपये कम से आवाम को रिलीफ मिल रही है या तकलीफ मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है, खैर। क्या नाम है? उमैर नाम है। उमैर नाम है? हाँ जी। लाहौर के? नहीं, पेशावर। पेट्रोल की कीमत पहले 137 रुपये बढ़ाई जाती है, फिर 80 रुपये कम कर दी जाती है। कोई सुकून आया दिल को? सुकून नहीं है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। ये लोग समझदार है, आवाम बेवकूफ़ है। आवाम निकलते ही नहीं है, आवाम में दम है नहीं। देसी मुर्गी बना हुआ है, बस यही काम है। देसी मुर्गियाँ ये कैसे सही होंगी? ऐसे सही होगा, डंडा निकालोगे तो सही हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे तो सही नहीं होगा। सड़कों पे निकलना पड़ेगा। 1000, हाँ सड़कों पे निकलना होगा। 1000 रुपये लीटर होगा, फिर क्या करेगा आवाम? वही बात होगी। बस कोई रोड पे आएगा तो पकड़ के लेके जाएगा, एक हफ्ते बाद पेट छोड़ेगा, 10-15 हज़ार रुपये ले लेगा, बाहर आएगा। बस वही मसला है। बस पाकिस्तान में कोई काम सही नहीं हो रहा है। जी जी सर। मैं शहबाज शरीफ साहब वेखो, खुदा दा वास्ता जे गरीबां नूं क्यों मारी जा रहे जे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੇ? ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਦੱਸੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਲੋਂ? ਦੱਸੋ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये जरा कैमरा घुमा के दिखाइएगा। मोटरवे वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ, ਔਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 137 रुपये ਵਧਾ ਕੇ 80 रुपये ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 500 ਦੀ ਗੈਸ ਹੁਣ ਭਰਾਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਭਰਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, बाकी तो और मारी जा रहे हैं। गरीबों ने जीण दे। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा कह रहे ने बड़ा काम करवाने ने पंजाब च, की कहोगे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। बड़े काम कर रहे ने, लेकिन विचों विचों गपले भी बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कर रहे ने। समझ गए हो? काम कर रहे ने, अंडरग्राउंड गपले भी बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ हो रहे ने। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 200 ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 500 ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? और पेट्रोल 80 रुपए घटाए ने, उधर होर टैक्स साडे उत्ते पा के साडी छेला देनी उन्होंने। कहंदे ने 100 रुपए दी सब्सिडी दांगे। ओ कोई शय नहीं है, सिर्फ गल्लां ही ने, उत्तों उत्तों दी गल्लां ने। कोई सब्सिडी नहीं मिलनी कोई किसी चीज़ दी। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, पूरा एक अमल होएगा, फिर उस तो बाद जाके सब्सिडी। मेरे को ऑटो रिक्शा खड़ा, मेरे को कागजात ने, मेरा ID कार्ड है, मेरे नाम है, मैंने सब्सिडी दियो लैके केड़ी दे रहे ने? ਇਹ ਮੇਰਾ ID कार्ड मेरे को, मेरे को रिक्शा ऑटो जियो चाचा किथे कार्ड नहीं है जन्म। ਇਹ ਵੇਖੋ सारा मेरा जर्मन कार्ड है। ਇਹ मेरा ऑटो रिक्शा मेरे नाम है, मेरे को कागजात हर चीज़ मुकम्मल हैगी है।
मैं वेखांगा मैनू केड़ी सबसिडी मिलती है या केड़ा रिलीफ मिलता ऐसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात को जो कौम से खिताब किया उनमें उन्होंने जो है वो भरपूर तरीके से बोला है कि जी 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और अब आवाम मुतालबा कर रही है कि आखिर वो सब्सिडी है कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं? हम कुछ भी नहीं कहते, करते कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दिखाएं दिखाएं फोन दिखाएं, आगे आए। इमरान खान की तस्वीर लगाई है। हाँ जी, इमरान खान के सपोर्टर है हम, क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है। अवाम के लिए उसने सोचा था। इमरान खान ने उसने कहा था मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बर्दाश्त कर रहे हैं आप? ये कौम का रही है, सोई हुई कौम ये बर्दाश्त कर रही है। जब तक ये जागेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो ऐसे ही काम होता रहेगा। ये कौम जिंदा होगी तो सारे लात बदलेंगे। 137 रुपए बढ़ाकर फिर 80 रुपए कम करना, आपकी जिंदगी में कोई सुकून आया या फिर आप कहते हैं कि ज़हनी तौर पर मजीद मैं खराब हो रहा हूँ? वो कहते हैं ना किसी गरीब का 500 गिर गया उसको 50 मिल गए, इसी की खुशी में है। तो पटवारी इसी खुशी में पागल हो गए हैं कि 80 रुपए उसने सस्ता कर दिया है। तो इसी वजह से कहते हैं कि अपने जो जज्बात जगाएं, अपने आप पंजाबी कौम जागेगी तो ये लात बदलेंगे। आपकी जिंदगी कितनी मुतासर हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से? ये तो बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत हालात ख़राब है। समझ लो काम शाम हर चीज़ महंगाई हो जाती है पेट्रोल की वजह से, तो इसी वजह से और कुछ महंगा हो जाता है। जो तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, दिहाड़ी बढ़ नहीं रही, वो वहाँ पे ही है। मगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, तो वो वैसे ही चल रहा है। तो आपको ज़्यादा याद आती होगी इमरान खान की, क्योंकि जी उनके दौर क्या बात है, वो इमरान खान हमारे दिल में है। हम तो पीछे ना हटने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। इंशाल्लाह हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बकाया कौम का जागना ज़रूरी है। कैसे जागेगी कौम? ये जब डंडे पड़ते हैं, इनके साथ यही हालात होते हैं। कौम तो आपकी चुप कर गई है जब से डंडे बनने लगे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा वो वक्त, इंशाल्लाह बांग्लादेश से आगे निकलेंगे, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। इंतजार कर रहे हैं वो वक्त के। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या करते हैं? सर क्या कहते हैं कि महंगाई इतनी है कि क्या कहना है आपको, बच्चों को कि क्या करें। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, मेरा रिक्शा है मेरे पास। कितना फर्क पड़ा है जिंदगी पे? ज़िंदगी में तो बहुत फ़र्क पड़ता है। साफ ज़ाहिर है कि महंगाई इतनी हो गई है, सौदा लेने जाएं दुकान पे तो वहाँ पर मकसद है कि आटा घी महंगा है। पेट्रोल डलवाने जाएं तो पेट्रोल के जब सारी दिहाड़ी हम कमाते हैं, जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो जेब खाली हो जाती है। तो वह 137 रुपए पहले बढ़ाए गए, 24 घंटे के बाद 80 रुपए का जो है उन्होंने कमी कर दी, क्या कहेंगे? 80 रुपये का कमी की है तो क्या किया है, एक महीने के अंदर उन्होंने कितना बढ़ाया? 105 रुपए एक महीने में बढ़े हैं, 1 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक। आपसे 15 दिन पहले 58 रुपये तेल बढ़ाया इन्होंने, 137 रुपये बढ़ा के 57 रुपये तेल कम करके जी 80 रुपये का हमने रिलीफ दे दिया। तो क्या रिलीफ दिया? 57 रुपये बढ़ा दिया ना, रिलीफ तो नहीं दिया ना उन्होंने। हमारे लिए क्या है, जो मारना है गरीब को तो वैसे कुछ चीज़ दे के तो मार दें, यही कह सकते हैं। अब हम क्या करें? ऐसे ही चलता रहा तो क्या गरीब तबका बाकी रहेगा? गरीब तबका ख़त्म हो गया है और मजीद जो रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो कस्में खाई थी ना कि हम गरीब एक नहीं रहने देंगे, और ये कस्में वो पूरी कर रहे हैं कि हम मार देंगे भूखा। ये भूखा मारने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कुछ कहना चाह रहा हूँ। सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, पहले 137 पे बढ़े, फिर 80 रुपए कम हो गए, इससे आप खुश हैं? नहीं, हम खुश तो नहीं है, लेकिन मसला ये है ना कि देखें गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती है, अपनी महंगाई करती है, ठीक है, जंग लगी है उसका मामला था, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट ने देखना है, अवाम ने नहीं देखना। हुकूमत किस लिए होती है? 160 रुपए लीवी टैक्स था और जितनी मर्जी कीमत बढ़ जाए आलमी मंडी में, लीवी टैक्स में कमी या पेशी मतलब उस पर फर्क नहीं पड़ता। 160 रुपए आप सिर्फ लीवी टैक्स दे रहे थे। अगर ये 500 रुपया भी हो जाए ना, जो हमारी माएँ बहनें हैं, गरीब तबका है, वो किराया नहीं देती। जब वो किराया नहीं देगी तो हम उसको कैसे लेके जाएंगे? बात एक। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इसको कह देते हैं ये 10 दिन का चालान आप लोगों को माफ़ है। 10 दिन के बाद अगर वो 10 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद इतने चालान होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ऐसे ही है ना, क्यों एक चालान तो माफ़ कर दिया, उसके बाद 10 चालान कर देते हैं, वो किधर जाते हैं? उसी के खाने में जाते हैं ना। क्या ना हक चालान करते हैं, बनता नहीं है फिर भी करते हैं? हाँ, अगर मॉडल टाउन चले जाए मोड़ पे, वहाँ पे देखो वार्डन वाले खड़े हुए हैं। अगर बाइक से कोई रिक्शे वाला आता है तो उसका चालान कर देते हैं, अगर जो उधर रिक्शे वाला खड़ा है उसका चालान नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो वार्डन वालों को मंथली देते आप हैं। रिक्शा चलाते हैं, पहला आपका मसला ये है कि पेट्रोल महंगा है, दूसरा आपका मसला ये है कि वार्डन नाहक चालान कर देते हैं, इसके अलावा
इसके अलावा कि ये है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा है, ये मामला जो है ना इंसान के बहुत बड़े। कहाँ जाएंगे, हमारी तो दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती, क्योंकि 1000 रुपये हमने रिक्शे को किराया देना है और हमने घर का खर्चा करना है, पेट्रोल डलवाना, हमने कहाँ जाना है। सर कह रहे हैं कि 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, मिलेगी? मिल रही है? नहीं मिल रही। वो तो 2000 रुपये की सब्सिडी भी दी है ना इन्होंने, 2000 दी है, बिल 10,000 आपको पड़ गया, जो 1000-1500 बिल आता था 2000 आपको मिला है, तो उस महीने के 10,500 12,000 बिल पड़ा है, तो ये क्या सब्सिडी दी है? क्या हल देखते हैं इन सारी सूरत हाल का? सूरत हाल तो यही है कि आवाम जागेगी तो फिर ही कुछ बनेगा, मुझे तो यही लगता है। कैसे जागे? आवाम भूख से जब मरेगी तो फिर जागेगी, ऐसे तो नहीं जागने, क्योंकि अब तक जागनी होती ना तो तब तक ये कब से जाग चुकी है। वोट किसको दिया था? हाँ जी, वोट किसको दिया था? वोट तो हमने इमरान खान को दिया था, इमरान खान को? बिल्कुल इमरान क्यों? खान को दिया था। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जलील बहुत कर दिया है, तो साफ ज़ाहिर है ये अभी भी ये बैठे हुए हैं 17 रुपये के, ये खुद अपने वोट से आए हैं? नहीं आए, क्योंकि ये शुरू से इनका काम चल रहा है, शुरू से इनका यही काम चल रहा है, दूसरे के हक पे डाका डालना, और ये हो रहा है। हम गरीबों के हक पे इस टाइम डाका डाला हुआ, यही डाका ही है ना, कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर आए दिन बिल बत्ती के इतने महंगे हो गए हैं, गैस का बिल इतना, गैस हमारे घर में आती नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती राय का। ऐसा ही है जी 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 जी। जब ये इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ये इन्होंने खुद कहा है, अभी आप सर्च करके देख ले, इनकी वीडियोस वायरल अभी पड़ी होगी, इन्होंने खुद कहा था, अवाम देखो लोगों, जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो यूं समझो कि हुक्मरान चोर है, इन्होंने खुद कहा था। अभी सर्च करके देख लो, इनकी वीडियो, इनके बयान पड़े होंगे। इन्होंने कहा था कि जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो यूं समझो कि हुकूमत चोर होती है। अभी बताओ कौन चोर है? अभी बताएं कौन चोर है? मेरे सवाल का जवाब दे शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन चोर है? गाँव दसो, तुसी बताया ते इंज बताया जे कि गरीब दी वोट पाड़ के रख दी है, तुसी इंज रेट बताया जे। इमरान खान ने थोड़ा जिहा बताया सी ते तुसी गरीब दी पाड़ के ओदे गल च पा दी है। अच्छा, बहुत अदालत है तुहानू, अवाम इस वक्त अदालत च तुहाडे गिरेबान होणगे, साडे हाथ होणगे, ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, गरीब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। चाचा पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त इतना आग बगूला है कि उनके पास ना खाने का कुछ है, एक ही जो है वो उनके पास तरीका था कमाने का, वो था रिक्शा चलाना। जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, अवाम, ये तो एक बाबा जी हमने आपको दिखाया, इस तरह के लाखों लोग हैं जो हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान आबाद। क्या करते हैं? मैं इस्लामाबाद से, मैंने आज से तकरीबन 3 माह पहले सफ़र किया था, तो किराया 1600 रुपये था। 3 माह के अंदर जो है आज किराया 2800 रुपये मतलब वसूल किया जा रहा है। तो आप देख लें कि एक पैसेंजर पे अगर 1200 रुपये का लोड पड़ रहा है, मजबूरन वो 1 माह के बाद भी जाता है, 15 दिन के बाद भी जाता है, 3 माह के बाद भी जाता है। अगर एक गरीब आदमी पे इतना बड़ा लोड पड़ रहा हो तो बाकी आवाम किस तरह गुजारा करेगी? मैं बज़ाते खुद जो है नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ, लेकिन जो मुल्की हालात किसके सपोर्टर हैं? जी मैं नवाज शरीफ साहब का हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज आप देख लें कि ये हालात चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग चल रही है, लेकिन पाकिस्तान का क्या कसूर है इसमें? आप इस चीज़ को भी देख लें कि इसमें अवाम का, शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं, तो इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? देखें अगर मुल्की हालात या ये मामलात देख जाएँ तो इसी तरह इंसान का जो है दिल बदन होता है, ठीक है। इन चीज़ों को देख के जो है ना इंसान इन चीज़ों से मुतासर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हम मानते हैं कि मुल्क के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। जब ऐसे मामलात आ जाते हैं कि इंसान का दिल जो है वो बेज़ान हो जाता है। आप यही मिसाल ले लें कि 3 महीने के अंदर 1200 रुपया इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक किराया जो है वो इतना बढ़ गया है, ठीक है। बाकी आप खुद सोच समझ लें कि ये क्या मुल्की हालात कैसे होंगे, क्या मामलात चलेंगे। ऐसे मामलात चलते रहे तो अगला वोट किसका है आपको? देखें आगे जो बेहतर होगा, मैं तो कहूँगा कि जमात इस्लामी को दूंगा इंशाल्लाह, वो एक इस्लामी जमात है। अगला जो मेरा मिशन है इंशाल्लाह वही है। तो इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? देखिए इमरान खान को मैंने पिछली दफ़ा वोट दिया था, ठीक है, मैं उसका भी मैं कहता हूँ, लेकिन जो मामलात देख के इंसान खुद जो है इन चीज़ों से बेज़ान हो जाता है। ये भाई ने कहा था कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ठीक है। इमरान खान जो है बज़ाते खुद बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसने जो
आगे जो वजीर वगैरह चुने थे, कुछ पीपल्स पार्टी से, कुछ नून लीग से, ठीक है, उनकी वजह से जो है अवाम उससे बददिन है, ठीक है। उनको हुकूमत करने दी है आप लोगों ने, 4 साल उन्होंने भी किया है, ठीक है। ऐसे थोड़ी होती है कि हुकूमत मेरी जान, ऐसे थोड़ी होती है। ये भी देखें कि 5 साल आज तक मेरे ख्याल में मुशर्रफ के अलावा किसी ने पूरे नहीं किए, सर किसी ने भी नहीं किए, मुशर्रफ के अलावा वज़ीर आज़म के तौर पर किसी भी ने भी नहीं पूरे किए। 4 साल उन्होंने भी किया है, ठीक है। बड़ा अच्छा कुछ सोचा हुआ था, बहुत कुछ सोचा था उसने। कोरोना के दरमियान उसने बड़ा कुछ सोचा है आपके लिए, फिर भी उसने माशाल्लाह आपके लिए पेट्रोल भी सस्ता किया, बिजली भी दी, सेहत कार्ड भी दिया आपको 10 लाख का। हम इस सारी बात को मानते हैं। कोरोना में इमरान खान 30 रुपए लीवी टैक्स लेते थे और इस लीवी टैक्स को फिर जीरो कर दिया गया और अभी लीवी टैक्स हम दे रहे हैं 160 रुपए से भी ऊपर। तो ये जो है वो जरा सा फर्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? एहतशाम। क्या करते हैं एहतशाम? ये रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चलाते जी हाँ। हैं? इतने यंग हैं, देखकर लगता है कि पढ़े लिखे हैं, फिर भी रिक्शा चलाते हैं। ये जो हमारे ऊपर सरबराह बैठे हुए हैं ना, ये उनकी मेहरबानी है। जी बिल्कुल। मेहरबानी जो उन्होंने 80 रुपए की दोबारा से की है, उस मेहरबानी पे क्या कहेंगे? वो लोग, हम लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। सीधी सी बात है, 500 रुपये लेके जाके 80 रुपये छोड़ दिए, फ़ायदा कहाँ पे तेल ले गए हैं। 80 रुपये छोड़ने का फ़ायदा इमरान खान के दौर में कितने में इनको इंटरनेशनल मिल रहा था? 108 रुपये लीटर, 108 रुपये लीटर डॉलर पर बैरल। अभी कितना है? 110 है, सॉरी 110 इमरान खान के पास, अभी 108 है। ये 350 रुपये ले गया, 450 रुपये पे, वो 150 रुपये दे रहा था। ये कैसे है? ये सवाल है। सोचना चाहिए ना अवाम को। हम लोग वही बेवकूफ़ अवाम में बस निकलते नहीं हैं। हमने अपने हक के लिए बोलना छोड़ दिया हुआ है। हमारे सर पे पत्थर रख दो, हमने बोलना ठीक है, ओके, खलास, बस इतने ही बोलेंगे। इनको इससे ज़्यादा बोलेंगे वो उठा हक के लिए बोलना क्यों छोड़ दिया है? इस हुकूमत ने बोलने के लिए काबिल छोड़ा है। तो आपको लगता है कि एक बुज़दिल कौम को जन्म दे रहे हैं? बिल्कुल। अभी हम बोलेंगे इमरान के साथ कुछ बोलेंगे, उठा के ले जाएंगे रात को। सीधी सी बात है, मैं तो सीधा बात बोलूँगा। अभी मैं बोलूँगा इमरान बहुत अच्छा है, मैं नारे लगाऊंगा 2 मिनट के, रात को उठा के ले जाएंगे। इनको डर है इसलिए नहीं बोलने देते। डर इनके सोचने वक्त भी ये डरते हैं उनसे। तो इनके इमरान के लिए जेन में डर बैठा गया हुआ, बस सीधी सी बात है। ये लोग खत्म हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। रोने के काबिल छोड़ दिया हुआ, रोने के काबिल। सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान को आप अगले 2 सालों में कहाँ देखते हैं? अगले 2 सालों में आपने कटोरा, या अल्लाह, ये सारे ऐसे ही करते होंगे। सीधी सी बात है, इन्होंने ऐसे कर देना। ये पूरी दुनिया में घूमने जाते हैं, मांग के इधर आ जाते हैं। अब इनको कोई पैसा भी नहीं दे रहा, दुबई ने अपने पैसे मांग लिए हैं, थोड़ी देर बाद चाइना अपने पैसे मांग लेगा। हमारा तो खजाना ख़त्म। इन्होंने सब्सिडी कहाँ से देनी है? ये आवाम को खुद लगा रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब तेल बढ़ाते हैं, उनके वज़ीर आला आगे बोल देते हैं हम तेल बढ़ा दिया, ये हो गया। जब कम करना होता है खुद आके बैठा जी मैंने कौम के लिए ये किया। क्या किया भाई? कौम को 300 का ऊपर लगा के 80 रुपये कम कर दिया, फ़ायदा? ये बताएं ना। यहाँ तो करता ना ला के भी देता 200। एक महीने में 205 रुपए की कीमत का इजाफा किया है, वक्फे के साथ। हाँ जी, तो 80 रुपये छोड़ दिया, क्या फ़ायदा? रेट किराया तो वही है, किराया इन्होंने कम किए हैं, किसी ने भी, हमने भी नहीं किए। क्यों करें? मैं पूरा ही नहीं पड़ता, क्या करें? कस्टमर नहीं आता, समझ ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे? हमारा तो वही हाल है। अभी बस सवारी को बोल दो 100 रुपया किराया, वो बोले कि मैं 50 दे के जाती थी, कैसे पूरा करेंगे? वो कहते हैं रात को 80 रुपये कम कर दिया, 80 कम किया, जो 300 बढ़ाया वो कहाँ पे जाना है? सर क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है? इसके मामले में मैं नो कमेंट। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। सर क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं और यहाँ न्याजी अड्डे से लेके जाते हैं? जी बिल्कुल। तो पेट्रोल की कीमत में पहले 137 रुपये इजाफा, फिर 80 रुपये कमी, रिलीफ कैसा लगा है? ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये गरीबों की तबाही है। कारोबार है नहीं, कारोबार हो ना तो पेट्रोल 500 भी समझ में आता है। जब बिजनेस ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, रिक्शे की दिहाड़ी कैसे निकालेंगे? 500 से ऊपर तो गैस है, तो कैसे चलेगा आप बताएं? तो ये तो समझ लेना वो गरीबों का खून चूसने वाली बात है। वो ये पूछे सुबह किसी ने 1000 पकड़ा, किसी ने 1200 पकड़ा, किसी ने 1500 पकड़ा, 1000 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी है। तो ये तो समझ लें बर्बादी है, बर्बादी समझते हैं ना। ये तो गैस हो ना 150 हो 200 हो, चलो समझ में आता है। 500 से ऊपर गैस है, सवारी पैसे नहीं देती, तो घर का किराया कैसे देंगे, बिल कैसे देंगे? जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये आपको पता ही है माशाल्लाह मरियम नवाज हमारे कह रहे हैं पंजाब में बड़े काम करवा रही है। क्या काम हो रहा है बताएं ना, क्या काम क्या होगा मुझे बताएं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो सिर्फ भूख नजर आ रही है, सिर्फ भूख। सुबह से निकले अभी तक 1300 रुपया नहीं पकड़ा, तो रात को 1000 रुपये दिहाड़ी देनी रिक्शे की, तो फिर बच्चों का खर्चा, फिर माँ बाप का,
क्या करेंगे हम? तो ये सवालिया निशान है और ये हुकूमत के सामने सवालिया निशान है जो आवाम कर रही है। क्या कर क्या समझते हैं कि किस हुकूमत में आप थोड़े बेहतर थे, आसानी थी, जिंदगी अच्छी जा रही? इमरान खान, बिल्कुल। ऐसा क्यों? बस जो दिल में वो बताना चाहिए। 100 रुपए फी लीटर था इसलिए? नहीं, उसकी हुकूमत में 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लगा के गए हैं, 6-6 हज़ार की रिश्का चला के। कोरोना के अंदर हमने 7-7 हज़ार रुपया कमाया एक दिन में, तो अब क्या है? अब तो कुछ भी नहीं, सारे हालात भूखी है ना, सिर्फ भूख है तो बस समझ ले भी अब वो बलि का बकरा है तो वो हम है, तो छुरियाँ इनके हाथ में, बकरे हम हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो अगले 1-2 साल में पाकिस्तान को फिर कहाँ देखते हैं? बस वैसे तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, आप तो बेहतर जानते हैं। बस ये तो मुल्क समझ ले डिफॉल्ट हो गया है, ये तो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, वरना तो ये तो बेड़ा गर्क हो चुका है, बिल्कुल ही हो चुका है। तो अब मैंने बाहर जाना था, तो बाहर की वजह से इंसाफी है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो समझ ले भी बस जान सारी निकल गई। क्या हल देखते हैं कि कोई और हुकूमत आनी चाहिए, कोई और आना चाहिए? इमरान खान को छोड़ दें बस। इमरान खान को छोड़ने से मसले हल हो जाएंगे? के घर पे यकीन है हद से ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं है, हद से ज्यादा। क्या वजह? कोई ना कोई वजह। डरते हैं। वो पायलट नहीं मिला ये बाहर से, तो ये तो मेहरबानी होगी अगर इमरान खान को छोड़ देंगे। मैं तो खुद चाहता था कोई मिले, कोई हम भी बात करें किसी से। हाँ ना, तो इधर ना ये पाकिस्तान में बड़ी बर्बादी है। क्या कहेंगे उन लोगों को जो अब पहले बोलते थे अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, जिप लगा दी अपने मुंह? वो दरअसल पता है क्या बात है, इमरान खान को बस छोड़ दें, ये समझ ले मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरी तो क्या कई गरीबों की ख्वाहिश है। ये अभी देखे ना, हम इधर अड्डे पे चलते हैं, यतीम खाने मजदूर बैठे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई गरीब गाड़ी वाला आता है, उनको चावल 500-500 रुपया ये चीज़ें देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना कई लोग तो ऐसे हैं ना भी आत्महत्या कर रहे हैं। दरिया पे से पीछे 2-3 बंदों ने रिश्का समेत छलांग लगा दी है, बच्चों को लेके मर गए वो। लेकिन ये मसला ऐसे ही है ना, ये गलत कर रहे हैं, ये हुकूमत सरासर गलत कर रही है। उन्होंने कहा था कि हम कोई गरीब नहीं छोड़ेंगे, कहाँ रह रहा है गरीब? छड़िया किथे, अद्धे तो मर गए ने बेचारे, तो कई बंदे तो ऐसे ने भी जेडे साढ़े तरह बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भी लास्ट वार्निंग है, ये इमरान खान रिहा किया जाए। आपकी लास्ट वार्निंग है? वार्निंग है ना, गरीबों की वार्निंग है ना। अगर कोई ऐसी बात करेंगे ये ना हो यहाँ से उठा के ले जाए, तो डर भी तो लगता है ना, घर में माँ बाप भी बूढ़ा है, उनको पालना भी तो ज़रूरी है ना। इसके लिए यही है भी अगर मेहरबानी होगी उनको छोड़ दें। ये मैं समझ लो भी सलाम करता हूँ मीडिया सारी दुनिया से। और देखें ये इतना इंटरनेशनल बंदा है इमरान खान, ये क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी। सर गुड नेम? शहबाज अली। सर सवाल ये है कि जी 137 रुपये इजाफा किया जाता है पेट्रोल की कीमत में, फिर 80 रुपये की कमी कर दी जाती है, ये आपको रिलीफ अच्छा लगा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये धोखा है सरासर, ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे धोखा है? ये एक रात पूरा करते हैं, दूसरी रात कम कर देते हैं, ये तो गलत है ना। अगर करना है कम तो पूरा कम करें, दुनिया को रिलीफ मिले। और पता है सब मर रहे हैं, कौन सुखी है आपको पता है? कोई सुखी नजर आ रहा है आपको? 500 रुपये किलो गैस है, सवारी इतना किराया नहीं देती, सब मर रहे हैं। ये चिंची वाले से पूछो, वो कहेगा मैंने कल का खाना नहीं खाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाना माना सब कुछ खाया है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये कुछ ना खाएं। अब ऊपर जाएगा, नीचे तो थोड़ी आएगा। आपका क्या ख्याल है, आएगा नीचे? सर महंगाई को मैंने कभी रिवर्स गियर लगता नहीं देखा।
हाँ ये मज़ीद आगे जाएगी, बैक नहीं आएगी। मैं तो यही कहना जो चाहता हूँ, सब्सिडी का ऐलान इन्होंने किया है वो आपको कोई सब्सिडी वगैरह मिली? कुछ नहीं मिला और ये मज़ीद महंगी महंगी चीज़ें मिल रही हैं। ये गैस वो कह रहे हैं कि जी वो पीछे से वो उन्होंने उनका निज़ाम है इसलिए गलत हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या कसूर, हम भी गरीब आदमी इधर मजदूरी कर रहे हैं, हमारा सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोच रहे? ये गैस आप इन्हीं को जिम्मेदार समझते हैं जो हुकूमत कर रहे हैं? जाहिर बात है यही जिम्मेदार है। अब ये काम ये कर रहे हैं तो किसको जिम्मेदार डालेंगे? एक्चुअली बात ये है कि हमारा साथ इन्होंने करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो बाहर से तो कोई नहीं आएगा। सर हल क्या देखते हैं, कोई नई हुकूमत या फिर यही ठीक करें? वो इमरान खान साहब जिंदाबाद, ठीक है। हम तो यही कहना चाहते हैं, आगे हम ज़्यादा बात करेंगे ना तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा हम ऐसी बात नहीं करते। हाँ अवाम आपके अच्छे का ख्याल रखते हैं लेकिन आप अवाम के अच्छे का ख्याल नहीं रखते। ये रख रहे हैं, और क्या रखेंगे? अब हम तो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा लीडर आए जो हमें सुख दिलाए, ये ना है कि हमें पता चला भी एक दिन खाना भी नहीं खाया। कुछ लोग ऐसे हम देखते हैं जो खाना वो कहते हैं हमने कल से खाना नहीं खाया, गुर्बत है ना। ये ऐसे ही गुर्बत, जैसे पेट्रोल या गैस बढ़ेगी आपको पता हर चीज़ बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत को? वो कहेंगे कि आपकी मेहरबानी, कोई हमारे लिए अच्छा सोचें, आपका खुदा का वास्ता आपका। ये गरीब आदमी, ये देखो ये इसकी तरह मारें जी, ये बहुत बुरा हाल हो गया इसका, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। इतनी देर इन्होंने बहस की, मुझे कसम से बहुत बुरा लगा कि यार देखें ये इसने कभी मीडिया पे ये भाई नहीं आए, ये आपकी कौन सी न्यूज़ है? कीमा भी खाते हैं ये नहीं बताया, लेकिन अब ये दाल खाते हैं, पूछ लें। कीमे से दाल पे आ गए। अब जाहिर बात है, अब कीमा खाएगा घर क्या देगा, इसकी माँ मारेगी इसको। बहुत शुक्रिया जी सर आपकी कीमती राय का। नाजरीन सर नया पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या नाम है? इरफान अली सर राइडर है जी। सर पेट्रोल की कीमत पे पहले 137 पे इजाफा किया जाता है, फिर 80 रुपए कम कर दिए जाते हैं। आपको ये बात अच्छी लगी, खबर अच्छी लगी? नो, क्यों? पेट्रोल बहुत महंगा है, काम नहीं है, ठीक है। दिहाड़ी होते थे, दिहाड़ी देते हमें पैसे नहीं देने, ठीक है। क्या करे हमारा बंदा मजदूर, क्या करेगा, किराया देगा, बच्चा पूरा करेगा, पेट्रोल पूरा करेगा, ठीक है। दे देते आते दो थे, क्या हालात है। मियाँ बैठा है, मियाँ को पूछो, मियाँ खाना पाता पता है, ठीक है। लोग कहते हैं मियाँ नारे बाजते हैं, मैं कहता हूँ मियाँ ये नारे नहीं बात करते जी। इस वक्त आवाम की महंगाई के नारे बज रहे हैं। महंगाई बहुत महंगी हो रही है ना, महंगाई कितनी हो रही, ऑटोमेटिक आम कितनी हो रही है जी। बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया कि जी अगर महंगाई कम हो जाती है तो डेफिनेटली एक और यहाँ पे हमारे साथ जो है वो राइडर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी ठीक है। राइडर हैं? हाँ जी राइडर। सर पेट्रोल की कीमत में पहले 137 रुपये इजाफा किया जाता है, फिर 80 रुपये की कमी कर दी जाती है, यह आपको खुशी देती है खबर? इसमें कोई खुशखबरी तो है नहीं, क्योंकि 80 रुपये का रिलीफ दे दिया, 100 रुपये की सब्सिडी दे दी। नहीं, कम से कम 300 पे करे ना, फिर रिलीफ मिलेगा। हम कहेंगे ठीक है चलें, हमें 30-35 ही ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ये तो सब फर्जी बातें हैं, दिखावे के लिए ही है ये बात, सीधा सीधा। 80 रुपये से इससे क्या हुआ, खुद ही बढ़ाया इन्होंने 160, उसमें से आधे माइनस कर दिए। क्या समझते हैं, ये कोई स्टंट था? ये स्टंट ही है इनका, क्लियरली नज़र आ रहा है सबको जी। सर इतनी महंगाई का जिम्मेदार आप वाकई आलमी जंग को समझते हैं? नहीं, ये हमारे अपने भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। कौन कौन इन्वॉल्व है? ये सबको ही पता है। मतलब आप भी उनमें से हैं जो आप डरते हैं, खुलकर नहीं बोलते? अब नहीं, मैंने सही बात बता दी है आपको। जिंदगी कितनी मुतासिर है इन पेट्रोल की कीमतों की वजह से? काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। पहले में अब में क्या फ़र्क है? हर बंदा इसमें परेशान है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद दिलशाद। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप भी? क्या बात है, फिर तो आप खुश होंगे, 80 रुपये की कमी होगी है कीमत में। खुश कौन होता है, पेट्रोल ज़्यादा हो गया, किराया वही पे वही है, आवाम देती नहीं है किराया। पेट्रोल कम होगा तो आवाम किराया भी देगी। किसको जिम्मेदार समझते हैं इतनी महंगाई का? जी, किसको जिम्मेदार समझते हैं इतनी महंगाई का? हम तो किसी को नहीं समझते, हम तो खुद गरीब बंदे रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या समझते हैं कौन कम करेगा इस कीमत को? बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिंदगी कितनी मुतासिर हुई है आप? ये तो कुरान के इरशाद है, जिस तरह के अवाम उस तरह के हुक्मरान।
हाँ जी, ये कुरान खुद फरमाता है, अब क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप भी काम करते हैं जी। क्या काम करते हो? हैंड फ्री पावर बैंक का। बाइक है? नहीं, मतलब आप सुकून में हो? स्कूल में हूँ। साइकिल पे आते हो? नहीं, मैं पैदल ही आता हूँ। पैदल आते हो? क्या बात है। कितना टाइम लगता था घर से आने में? 10 मिनट, जहाँ 5 मिनट बाइक पे लगते हैं 10 मिनट पैदल आने। सबको भी अपने अपने घर उठा कर ना अपने जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे जी। क्योंकि इस जैसे बंदे जो पैदल आते हैं ना सिर्फ वही सुखी हैं। हाँ जी। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर गुड नेम? अली रजा। सर आप राइडर हैं, बाइकिया का आपने जो है हेलमेट भी पकड़ा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों की वजह से आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है? बहुत उदास हो गई है, क्योंकि हमें जो पहले प्रॉफिट होता था ना वो हमें अब आधा भी मुश्किल मिलता है, क्योंकि सारे पैसे तो पेट्रोल में चले जाते हैं, तो हमें जो बचता है हमें कुछ भी नहीं बच रहा। तो ये हुकूमत को ये चाहिए कि पेट्रोल और कम करना चाहिए, इतना कम हो ताकि हर बंदे का आसानी से गुजर बसर हो जाए। अगर जब घर के हम बिल दे देंगे, बच्चों के पैसे ट्यूशन के स्कूल के वो नहीं निकलेंगे, तो हम कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। 137 रुपये बढ़ा के 80 रुपये कम करना, ये कुछ भी नहीं कम किया। इनको चाहिए 200 करना चाहिए। हाँ जी, ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें। किसी की याद आ रही है आपको? जी याद आ रही है, लेकिन उनको बंद कर दी है। जिन्होंने फ़ायदा देना था आवाम को, उनको बंद कर दिया है। जिनको नहीं देना चाहिए वो आराम से जो मर्जी करी जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप आला हुकाम को? हम यही कहेंगे कि कम से कम ना रियायत की जाए, ताकि हर बंदे का गुजर बसर अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तब उनके दौर में 150 रुपये फी लीटर वो याद आ रही है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हमसे बड़े हैं, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ किया जाए हमारे बारे में। यहाँ पर हमारे साथ एक और राइडर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप भी राइडर हैं, पेट्रोल की कीमत 137 बढ़ाई जाती है, फिर 80 रुपये कम कर दी जाती है, ये फैसला कैसा लगा आपको? ये बहुत ही गलत है। हम किराया मांगते हैं, वो किराया देते नहीं है। पहले किराया नहीं दे रहे, उसके बाद तो दे नहीं रहे हैं। सुबह का हमने 400 रुपये पकड़ा हुआ है, सुबह 11 बजे गए हैं। अब बताएं अब क्या करें। अब क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार? ये हुकूमत पंजाब में जो हमारी बीबी वज़ीर आज़म मरीम नवाज जैसे ट्रेन उन्होंने फ्री करी है, वही ये पेट्रोल हमें कम कर दे, वो सही नहीं है हमारे लिए। वो हमारे लिए बेस्ट है हमारे लिए। तो मिल रही है? मुझे किस चीज़ की भी नहीं मिल रही है। मैं टैक्स दे रहा हूँ, हर चीज़ का दे रहा हूँ टैक्स। पहले बिल आता था 1000 रुपया, अब आ रहा था 1800 रुपया। अब बंदा कहाँ जाए, कमाई है ही नहीं। अब सवारी किराया तो मांगो तो किराया नहीं देती, ठीक है ना।
हमने जो किराया हमारा बनता है वो किराया कहता है इतने में चले जाओ, नहीं पा रहे इतना तो पेट्रोल लग जाना, हम क्या कमाएंगे बताएं, क्या लेके जाएं घर में, बच्चों के लिए क्या लेके जाएं बताएं, सुबह का 400 पकड़ा, अब बाकी हम कहाँ जाएं बताएं। क्या समझते हैं हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? कोई और हुक्मरान आना चाहिए या इन्हीं को बेहतर करने चाहिए? हम तो ये कहते हैं इमरान खान से ठीक था, फिर 150 पेट्रोल छोड़ के गया वो, ये तो कह भाई ये वो साहब आ गए जो कोरोना का उन्होंने प्लान बनाया, अब कोरोना आया वो पैसे मांगते रहे, अब ये प्लान बखरा या जंग आ गई, कोई जंग नहीं है या जंग आ रही है तो उसका तरीक़ेकार होना चाहिए, गरीब के लिए सारा हमारे गरीब पे आना चाहिए। नून लीग आई है, हमें कहते हैं मरी नवाज है जो भी है, अरब का जहाज भी लिया ना, जहाज ले लिया उन्होंने, वो अच्छा काम किया, सारे सही काम नहीं किया उन्होंने, हमें तो नहीं अच्छा लगा ये। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। हमारे पास सर एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब आवाम में आगे अभी और मारे। 37 रुपए बढ़ाया जाता है, 24 घंटे के बाद 80 रुपए कम कर देते हैं। उससे पहले भी जो है वो 5-6 दफा कीमतें बढ़ाई गई हैं। क्या कहेंगे इस पर कि ये रिलीफ है? ये तो एक ड्रामा है, 130 रुपए बढ़ा के 80 रुपए कम कर दिए तो क्या किया, 1-2 दिन बाद फिर बढ़ा देंगे। आवाम को वैसा मारा कि पेट्रोल की वजह से तो बम चला के मार दे एक दफ़ा तो जान छूट जाएगा हमारे, और तो इसमें कोई मसला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि सारे आवाम जो है गरीब है, हम भी गरीब है, पेट्रोल की वजह से परेशान है, घर का खर्चा नहीं चला सकते तो पेट्रोल आके तकरीबन 50-60 रुपये महंगा हो गया एक दफ़ा। अभी तक मैंने पहले दफ़ा ये सुना है कि एकदम 60 रुपये 50 रुपये 130 रुपये महंगा कर दिया तो 130 रुपये 80 रुपये फिर कम कर क्या फ़ायदा, आगे 4-5 रुपये बढ़ाए जाते। ये देते हैं कि हमने रिलीफ दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, उससे आपको फायदा हो रहा है? हमारे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई सब्सिडी मिल रही है आपको? कोई नहीं मिल रही जनाब, किसी भी किस्म का कोई रिलीफ? किसी ने 1 रुपये भी सब्सिडी हमें नहीं मिला अभी तक, क्योंकि हम ट्रेन 500 रुपये किलो गैस हो रहा है, हमारे होटल है उसमें तकरीबन हमारे रोज़ के 1 सिलेंडर चल रहे, वो फिर 10-11 हज़ार रुपये का, अभी 25,000 रुपये का 24,000 रुपये के खाली सिलेंडर मिल रहे, हम क्या करेंगे? बहुत हैं कि कोई और हुक्मरान आना चाहिए या फिर इसी हुकूमत को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, आवाम सुखी हो जाएगी? अगर ये कर सकते हैं, महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो हमारा जान छोड़ के और कोई हुक्मरान आ जाए, हम तो ये कहते हैं बस। किसको लाना चाहते हैं? बस जो अच्छा हुकूमत है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो तो वही आना चाहिए, सब मुसलमान के लिए अच्छा हो पाकिस्तान। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान आ जाए या जरदारी आ जाए या नून लीग आ जाए या पीपल पार्टी वाले कोई भी, लेकिन हमारे आवाम के लिए अच्छा हो बस। वोट किसको दिया था पिछला? मैंने कि हमने गलती के देना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल। ये देखें जी, आवाम यहाँ पर पहुँच गई है कि कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही हुक्मरानी करनी है तो इससे अच्छा ये था कि हम अपना वोट, अब तो पछतावा हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते जी। सर मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में पहले इजाफा किया जाता है 137 रुपये, फिर 80 रुपये कम ही कर दी जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या समझते हैं ये आपको रिलीफ अच्छा मिला है? हमारा LPG का काम है। LPG 500 रुपये किलो मिल रही है, इसको भी कम किया जाए, जैसे पेट्रोल कम किया है ना, LPG भी सस्ती की जाए। हुकूमती सतह पर तो 500 रुपया नहीं है इसकी कीमत, लेकिन हमें 500 रुपये मिल रही है इस टाइम। अभी भी? जी। मतलब ये कि जो एक न्यूज़ आई थी कि जी जितने माफिया है जो महंगी गैस LPG बेच रहे हैं उन पर जो है वो उन्होंने कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? फिलहाल तो अभी 520 रुपये भी मिल रही है। चेक एंड बैलेंस नहीं है? ना जी, कोई चक्कर नहीं है, जिसका जिस तरह दिल कर रहा है उतना रेट लगा के बेच रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि LPG पे भी कंट्रोल करें, जैसे पेट्रोल सस्ता किया है LPG भी सस्ती करें ऐसे। जी ये सर आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर आप क्या करते हैं? किस वाले से? मतलब काम क्या करते हैं? ऑफिस जॉब करते हैं या कोई? मैं PDCL में कॉन्टैक्ट सेंटर। अच्छा, तो मतलब आना जाना बाइक पे है आपका? जी। पेट्रोल की कीमतों में पहले इजाफा, फिर कमी, 137 बढ़ाना, 80 रुपये कम करना, कैसा फैसला है? देखिए अब ये मुल्की हालात की वजह से हो रहा है, वैसे तो पता आपको आम रूटीन में जो है नॉर्मल ही होता है। इमरान खान के दौर में फी बैरल जितना मिलता था और अब जितना मिलता है अभी सस्ता मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? फैक्ट्स एंड फिगर्स तो इस बात पे आते ही नहीं है कि जी इतना महंगा पेट्रोल होना चाहिए। बस ये आलमी सतह पे है, अब सबके साथ ये रवैया इस टाइम, ये जो हालात क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से है, और तो कोई वजह नहीं। वैसे नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह। वोट किसको दिया था? वोट तो किसी को नहीं दिया। नहीं दिया था? नहीं। जाया किया था? बस वो नहीं दिल माना था। नहीं दिल माना, किसी को इस काबिल नहीं समझते? काबिल क्या, ये
अगर वोट सिलेक्शन से हो सब कुछ मामला तो फिर तो अच्छी बात है। तो जब पहले डिसाइड होता तो फिर वन साइडेड गेम पे नहीं मजा आता। ऐसे बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय। जी तो नाज़रीन, हम लोग न्याजी अड्डा मौजूद है जहाँ पर मुसाफिरों को ड्राइवर्स का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर अवाम के रिव्यूज जाने की जो शहबाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिया उससे अवाम खुश है या फिर नहीं, लेकिन 99% अवाम इस फैसले से खुश नहीं कि 137 रुपये बढ़ाना और फिर 80 रुपये कम करना और एक महीने के अंदर अंदर 205 रुपये का इजाफा कर देना पेट्रोलियम मसनूआत में, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।